Assalamu alaikum students. Our topic is subspace topology. Until now we discussed what is topology, topological spaces, and perform some important examples of topological space. Now we are going to discuss what is subspace topology. In subspace topology, we define an other topology on the subset of the set X, which is known as subspace topology. Let's see the definition of subspace topology. Let A be a non-empty subset of a topological space X. Then we define the topology on set A by using the topology defined on set X. Then the collection Ta A consists the sets of the form U intersection A, where U is belong to the topology defined on set X. Then Ta A define a topology on A, and it is also called subspace topology or relative topology on A. Then in this way we called A the subspace of the set X. हमने इसमें क्या किया है, हमने सबसे पहले स्पेस X का एक सबसेट लिया जिसे हम क्या कह रहे हैं, वो क्या है, सेट A. अब उस सेट A के ऊपर हमने टोपोलॉजी डिफाइन की है बाय यूजिंग द ऑल द ओपन सेट्स ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस X. हमने क्या करना है, A का इंटरसेक्शन लेना है टा के तमाम एलिमेंट्स के साथ. ठीक है, टा के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ओपन सेट्स हैं टा के अंदर, उन सब का हमने इंटरसेक्शन लेना है सेट E के साथ. इस तरह से हम एक नया सेट बनाएंगे जिसे कहेंगे टा A, जिसे हम कहेंगे वो क्या है, टोपोलॉजी ऑन सेट A, जो कि टोपोलॉजी की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता होगा. अब ये जो टा A है इसमें एम्प्टी सेट फाई भी होगा, इसमें सेट A इटसेल्फ खुद भी होगा, और इसमें हम आर्बिट्रेरी यूनियन और फाइनाइट इंटरसेक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने जो सेट टा A निकाला है वो क्या है, टोपोलॉजी ऑन सेट A, which is called relative topology or subspace topology on A, and the set A is called subspace of the set X. Before going to discuss more about on subspace topology, we see some examples on subspace topology. Let's see the first example. We consider the set X, which is equal to A, B, C, D. The set X consists of 4 points A, B, and C and D. And topology Ta on set X consists the sets subsets phi, singleton set A, and the set consists of the points A, B, and another subset A, C, D, and the set X itself. That we consider a subset of the set X, which is A. A consists of 3 points A, B, and C. The natural way to define topology on set A is obtained by taking the intersection of set A with each element of Ta, where Ta is the topology defined on X. We take the intersection of A with empty set phi, which is equal to phi. Then we take the intersection of A with subset A, then we again get the set singleton set A, and the intersection of set A with another subset of Ta, we get the subset AB. And when we take the intersection of set A with the subset ACD, we obtain the subset AC,
and the intersection of A with the set X itself give the subset A. So in this way we obtain a topology Ta A which have elements phi, the set A itself, singleton set A, AB, AC. Then we can easily see that Ta A satisfies all the conditions of topology. As the intersection of arbitrary intersection of any elements, we again get the element belongs to the set Ta A. And intersection, by taking the intersection of the elements, we again get the element of the set Ta A. And the empty set phi and set A itself also belongs to Ta A. So we can see that Ta A satisfies all the conditions of a topology. So Ta A is a subspace topology, or we can say a relative topology on set A. And the set A is called subspace of the set X. Now we take another example. 2. In example number 2, we take the set X is equal to the 4 points A, B, C, and D, and Ta consists the subsets of X which are phi, A, B, AB, ABC, and the set X itself. In this example, we take a subset A is equal to 2 points A and C. On the same way, we need to define a topology on A. Then we have to take intersection of A with each element of Ta. When we take the intersection of A with each element of Ta, we get the topology Ta A, which is called relative topology or subspace topology. The Ta A consists of the elements phi, A, AC, and the set A itself. Then we can easily see that the empty set phi and the set A itself also belongs to Ta, and union of any elements again belongs to the set Ta A, and intersection of any elements is also belongs to set Ta A. So we can say that Ta is a subspace topology or relative topology of the set X. Now we take the third example, which is more complicated than the above two discussed examples. Set X is equal to the real line R with the usual topology defined on R, and set A is equal to set of all integers. Then we have to find out what is the relative topology of the set of integers relative to the set R, the set of real line. Let me take an intersection of an open interval -1 by 2, 1 by 2 with the set of integers Z. Then we get the singleton set, consists the only one element which is 0. For all elements belongs to set of integers. Here we take the element X belongs to set of integers. For the element X, there exist many open intervals belongs to usual topology defined on the set of real line, such that the intersection of this open interval with the set of integers, we get the element X. So for each element belongs to set of integers, we have a open interval U, such that intersection of U with set of integers, we get the elements of set of integers Z. But we can see in special kind of topology which is called discrete topology, which have the elements of singletons. So in this way we get the relative topology of the set of integers relative to usual topology Ta R is a
discrete topology. Now we are going to give the proof of the definition of subspace topology. Let A be a non-empty subset of a topological space X. Then we have to show that the collection ta A is equal to the elements of the form U intersection A, where U is belongs to topology ta, which is defined on set X, is defined in topology on A. We know that ta A is a collection of subsets of set A. Then we have to show that this collection defines a topology on A. असल में हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम इस टाइप की कलेक्शन लेते हैं जिसमें हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं कि हमने क्या करना है कि कोई भी जो वी होगा जो टा ई से बिलोंग करता होगा वो कैसे जनरेट होगा, हम जिसका हमने इंटरसेक्शन लिया होगा किसी भी ओपन सेट या कोई भी सेट का एलिमेंट यू जो बिलोंग करता होगा टा से, उसका इंटरसेक्शन हमने लिया ए से, उससे हमें एक एलिमेंट मिला वी। हमने शो करना है इस तरह की हमने कोई भी जो कलेक्शन लेंगे टा ए टाइप की, वो क्या करेगी, वो एक टोपोलॉजी डिफाइन करेगी ऑन द सेट ए। ठीक है, अब हमने इसका प्रूफ देखना है। प्रूफ में हमने सबसे पहले क्या लिया है, सबसे पहले हमने ये कलेक्शन ले ली है टा ए इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ द सबसेट्स ऑफ द फॉर्म U intersection A, where U intersection A is equal to the set V। इसका मतलब ये है कि टा में कैसे एलिमेंट्स पड़े हैं, वो सारे एलिमेंट्स जिनका हमने इंटरसेक्शन लिया है, टा के तमाम एलिमेंट्स का हमने इंटरसेक्शन लिया है ए से, जो हमें इस तरह से इंटरसेक्शन लेके जो एलिमेंट्स जनरेट हुए हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, टा ए से। अब हमने ये शो करना है टा ए क्या है, एक टोपोलॉजी है ऑन ए। अब किसी भी सेट को हमने टोपोलॉजी प्रूव करना है तो हमने सबसे पहले क्या शो करना है कि एम्प्टी सेट फाई और द सेट ए इट सेट जो है वो टा ए से बिलोंग करता होगा। तो हम सबसे पहले क्लेम करते हैं कि जो एम्प्टी सेट फाई है वो बिलोंग करता है टा ए से। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि फाई बिलोंग करता है टा ए से, सिर्फ हम तब क्लेम कर सकते हैं अगर हमें कोई एलिमेंट ऐसा मिले टा से, टा क्या है टोपोलॉजी ऑन एक्स से, जो हमने टोपोलॉजी टा डिफाइन की है एक्स पे, हमें उसमें से कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिले जिसका हम इंटरसेक्शन लें ए से, तो हमें क्या मिल जाए, एम्प्टी सेट फाई। अब हमें पता है कि फाई किससे बिलोंग करता है, टा से। जब हम फाई का इंटरसेक्शन लेंगे सेट ए से तो हमें अगेन क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फाई बिलोंग करता है सेट टा ए से। अब हम क्लेम करते हैं कि सेट ए जो है वो टा ए से बिलोंग करता है। अगेन हमें क्या प्रूव करना होगा कि अगर ए बिलोंग करता है टा ए से तो कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास टा में बिलोंग करता होगा जिसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ लेंगे तो हमें एलिमेंट ए मिल जाएगा। एज वी नो डेट कि सेट एक्स जो है वो टा से बिलोंग करता है, और जब हम सेट एक्स का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो हमें सेट ए मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए मिलता है, ए बिलोंग करता है हमें सेट टा ए से, क्योंकि उसके लिए हमें एक एलिमेंट एक्स ऐसा मिल गया है टा से जिसका इंटरसेक्शन हमने ए के साथ लिया तो हमें सेट ए मिल गया है। तो हम कहेंगे कि ए बिलोंग करता है टा ए से। अब सेकंड कंडीशन क्या थी, हमें ये प्रूव करना है कि टा ए इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन। अब हम कहते हैं कि आर्बिट्रेरी यूनियन जो है टा ए के कोई कितने भी एलिमेंट ले लें हम, उनका जब हम यूनियन लें तो वो अगेन टा ए से ही बिलोंग करता होगा। अब हम कहते हैं कि वी आई क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब वी आई बहुत सारे हो सकते हैं, वी आई के ऊपर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, आर्बिट्रेरी होंगे ये। ठीक है, कोई फाइनाइट की कंडीशन नहीं है कि आई बिलोंग करता है
आई जो है 1 2 3 तक होगा या आई इक्वल होगा 1 2 3 टू सो एन तक। हमने क्या किया है, बहुत से वी आईज ले लिए हैं, ठीक है। अब कोई से जितने भी हम वी आई लें उनका जब हम यूनियन लें हमें ये शो करना होगा कि वो अगेन बिलोंग करता होगा टाई से। So we let Vi is belongs to set tie. Then we have to show that their arbitrary union is also belongs to set tie. अब हम कहते हैं कि अगर Vi बिलोंग करता है tie से तो Vi किस तरह की फॉर्म का होगा, कैसे जनरेट होगा। Vi हमारे पास जनरेट होगा जब हम कोई हमारे पास ओपन सेट UI बिलोंग करता होगा सेट टा में से, सच दैट UI का इंटरसेक्शन जब हम A से लेंगे तो हमें मिल जाएगा एलिमेंट Vi। तो Vi किसके इक्वल है, UI इंटरसेक्शन A। अब हम इसके ऊपर यूनियन लगाते हैं, यूनियन लेते हैं आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ Vi। तो आर्बिट्रेरी ऑफ यूनियन ऑफ Vi किसके इक्वल है, यूनियन ऑफ UI इंटरसेक्शन A, क्योंकि हमारे पास Vi किसके इक्वल है, UI इंटरसेक्शन A के। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ UI इंटरसेक्शन A को हम कैसे लिख सकते हैं, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ UI इंटरसेक्शन A। अब हमें पता है UI किससे बिलोंग करता है, सेट टा से। अगर UI बिलोंग करता है सेट टा से तो उसका आर्बिट्रेरी यूनियन भी टा से बिलोंग करता होगा, क्योंकि टा इटसेल्फ क्या है, टोपोलॉजी है ऑन X पे। अगर UI बिलोंग करता है टा से तो उसका आर्बिट्रेरी यूनियन भी बिलोंग करता है टा से। तो ये जो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ UI है ये क्या है, एलिमेंट है टा का। और जब हम इसका इंटरसेक्शन A से लेंगे तो हमें वो एलिमेंट किसका देगा, टा A का। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ UI इंटरसेक्शन A is belong to टा। Then we know that arbitrary union of UI intersection A किसके इक्वल है, arbitrary union of Vi। तो इस तरह से हमारे पास arbitrary union of Vi बिलोंग कर गया टा से। तो हम कह सकते हैं टा इज क्लोज्ड अंडर आर्बिट्रेरी यूनियन। नाउ वी हैव टू शो दैट टा इज क्लोज्ड अंडर finite intersection. To show that TA is closed under finite intersection, we take two sets V1 and V2. We have to show that V1 intersection V2 is belongs to TA A. If V1 and V2 are belongs to TA A, then there must exist two open sets U1 and U2 which are belongs to TA, such that V1 is equal to U1 intersection A and V2 is equal to U2 intersection A. Now we take the intersection of V1 and V2. V1 intersection V2 is equal to U1 intersection A intersection of U2 intersection A, which is equal to intersection of the set U1 intersection U2 with set A. We know that U1 and U2 are belongs to set TA and TA is a topology on X. Then it is obvious that TA is closed under finite intersection. So U1 intersection U2 is belongs to TA. If U1 intersection U2 is an element of TA, then the intersection of this element with A is obviously belongs to TA A. So the intersection of the element U1 intersection U2 with A gives the element which is belongs to TA A. We know that U1 intersection U2 intersection A is equal to V1 intersection V2. So V1 intersection V2 is belongs to TA A. So we can say that TA A is closed under finite intersection. By the above three properties, we check out that TA A is defined in topology on A. Now we discuss the definition of relative open sets. ओपन सेट्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हमने देखा कि रिलेटिव टोपोलॉजी क्या होती है।
अब हम देख रहे हैं कि रिलेटिव ओपन सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमको ओपन सेट्स की भी डेफिनेशन आती है, रिलेटिव टोपोलॉजी कैसे डिफाइन की जाती है वो भी हम सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि रिलेटिव ओपन सेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स करेंगे। लेट ए बी अ सबस्पेस ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस X, then a subset H of A is open in A or relative open to A if and only if there exists an open subset G of X such that H is equal to G intersection A। इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि H क्या है, एक सबसेट है A का। अब हम H को ओपन या रिलेटिव ओपन कब कहेंगे, अगर उसके लिए हमें एक ओपन सेट G मिल जाए टा में से, सच दैट कि हम H को लिख सकें इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ G एंड A। अगर H को हम कह सकेंगे कि वो जनरेट हुआ है बाय टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ A विद सम ओपन सेट बिलोंग्स टू सेट टा, तो H क्या होगा, एक ओपन सेट होगा या रिलेटिव ओपन होगा A में। अच्छा, जब हमने कुछ एग्जांपल्स की थी रिलेटिव टोपोलॉजी की, तो आप उसमें देखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो ओपन सेट्स ए के हों वो ओपन हो, ओपन सेट्स हों एक्स के भी। मतलब हम जो टा ए में हम एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, वो ओपन सबसेट्स हैं ए के, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ही एलिमेंट्स ओपन सबसेट हों एक्स के। ठीक है, आप एग्जांपल्स करें रिलेटिव टोपोलॉजी की, तो आप देखेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है द ओपन सेट्स डिफाइंड इन ए आर आल्सो ओपन इन सेट एक्स। अब हमने जैसे ऊपर कुछ एग्जाम्पल डिस्कस की थी रिलेटिव टोपोलॉजी की, अब हम उनको दोबारा देखते हैं। मैंने एक सेट एक्स लिया था जिसके अंदर 4 पॉइंट्स थे ए बी सी एंड डी, और एक सबसेट ए लिया था जो कंसिस्ट करता था 3 पॉइंट्स पे। वो कौन से 3 पॉइंट्स थे, ए बी एंड सी। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिंगलटन है जिसमें एलिमेंट है ए, वो क्या है, ओपन है ए में। अब वो ओपन होगा ए में अगर हमारे पास कोई ओपन सेट मिल जाए हमें टा में जिसका इंटरसेक्शन हम ए से लें तो हमें सिंगलटन ए मिल जाए। अब हमें पता है कि टा के अंदर सिंगलटन सेट ए मौजूद है, ठीक है, हमने उसका इंटरसेक्शन लिया ए से तो हमें सिंगलटन सेट ए मिल गया। ऑन द अदर हैंड सिंगलटन बी जो है वो ओपन नहीं है टा में। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि हमारे पास टा के अंदर कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिल रहा जिसका हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो हमें सिंगलटन बी मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बी क्या है, ओपन नहीं है ए में, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट जी of टा such that G intersection A is equal to singleton B। जैसे हमने B के लिए देखा कि B ओपन नहीं है A में, ऐसे हम और भी एलिमेंट्स के लिए चेक कर सकते हैं। अब हम एक सेट लेते हैं AC, हम ये देख सकते हैं कि AC क्या है, ओपन है A में, मगर AC ओपन नहीं है X में। तो जो मैंने पहली बात बताई थी आपसे आपको कि ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ एलिमेंट जो ओपन हो ए में वो एक्स के भी ओपन सेट्स हो। ठीक है, इससे हमें ये बात भी क्लियर हो गई। अब हमने एक और एग्जांपल ली थी जिसमें हमने सबसेट ए लिया था जो इक्वल था सेट ए सी के। हम इस सेट ए में देख सकते हैं कि सी ओपन है या नहीं है, सिंगलटन सी ओपन है या नहीं है।
तो उसका आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट जी of टा such that G intersection A gives the singleton C. तो हमारे पास C क्या है? ओपन नहीं है A में। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि सेट AC ओपन है A में, बिकॉज हमारे पास एक ओपन सेट हमें मिल गया है टा में ऐसा, जिसका हमने इंटरसेक्शन लिया है A के साथ। वो हमें क्या देगा? सेट AC। वो सेट क्या है हमारे पास? G किसके इक्वल है? सेट ए बी सी के। अब सेट ए बी सी का जब हमने इंटरसेक्शन लिया सेट ए के साथ, तो हमें क्या मिल गया? सेट ए सी। तो ये जो सबसेट ए सी है ये क्या है? ओपन है ए में, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक और ओपन सेट जी मिल गया है हमें टा में, सच दैट जी इंटरसेक्शन ए गिव सेट ए सी। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। उसमें हमने क्या लिया है? सेट एक्स इक्वल है सेट ऑफ रियल लाइन के विद यूजुअल टोपोलॉजी, एंड हमने एक सबसेट लिया है ए जो कि इक्वल है 0 1 के। अब ये जो हमारे पास सेट ए है कि हाफ ओपन और हाफ क्लोज इंटरवल है, विच इज ओपन ऑन 0 एंड क्लोज ऑन 1। अब हम एक ओपन इंटरवल लेते हैं 0 1/2 विच इज सबसेट ऑफ ए। अब ये जो ओपन इंटरवल है 0 1/2 ये ओपन होगा ए में। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि हमें एक ओपन इंटरवल आर में ऐसा मिल जाएगा जिसका हम इंटरसेक्शन ए से लेंगे, तो हमें ओपन इंटरवल 0 1/2 इजिली मिल जाएगा। हम कह सकते हैं 0 1/2 क्या है? ओपन है ए में। अच्छा, अगर हम एक ओपन इंटरवल लेते हैं वो क्या है? -1/2 से 1/2 जो कि बिलोंग करता है यूलर टोपोलॉजी डिफाइन ऑन आर। जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो हमें एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा 0 1/2। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था कि 0.1/2 ओपन है ये में या नहीं, उसका हमें आंसर मिल गया, क्योंकि हमें उसके लिए जी मिल गया। जी किसकी इक्वल है? -1/2 से 1/2 इंटरवल के। तो हम कह सकते हैं 0 1/2 क्या है? एक ओपन इंटरवल है ए में। अब हम एक और हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, वो क्या है? 0.71 which is open on 0.7 and closed on 1. The question is which is 0.71 is open in A. The answer is yes, because we have a open interval 0.73 belongs to usual topology on R. जब हम इस ओपन इंटरवल 0.73 का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो हमें हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल मिल जाएगा 0.71। तो हम क्या है? तो हमारी जो डेफिनेशन थी रिलेटिव ओपन या ओपन इन ए की वो फुलफिल हो गई। तो हम कहेंगे कि 0.71 क्या है? एक ओपन इंटरवल है ए में। बट 0.71 इज नॉट ओपन इन आर, बिकॉज वी नो दैट यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर में हमारे पास ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करते हैं। हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल आर नॉट बिलोंग्स टू यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर. So we can say that 0.71 is open in A but not open in R. We consider another example. Let X is equal to R with usual topology and A is equal to set of integers. Set A is equal to set of integer. हमने देखा था कि relative topology of the set of integers relative to R वो किसके इक्वल है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी के। और इसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं? सिंगलटन्स की फॉर्म में। अब हमें पता है कि तमाम जो सिंगलटन्स हैं वो ओपन है जी में, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सिंगलटन्स की फॉर्म के वो तमाम क्या है? ओपन है इन रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन ऑन आर।